हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स, जहां हम आपके सामने लाते हैं कुछ ऐसे लोग जिनसे आप रिलेट कर सकें और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें। आज की हमारी गेस्ट हैं सृष्टि मालपत, जो आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम बैंगलोर से पढ़ाई करने के बाद एक बहुत ही वेल पेइंग जॉब कर रही थी, लेकिन उन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए अपनी ये जॉब छोड़ी और आज एक योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही है। हम सृष्टि की इसी जर्नी के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। सो हाय सृष्टि, वेलकम टू आवर शो। Thanks, Abhishek. Hi, Abhishek. Hi, Satyam. I'm very excited to be here. Also, बहुत अच्छा लगा that you guys are taking up this initiative क्योंकि इस टाइम पे जब इतने सारे career options हैं, it's always nice to know how everybody else is doing और journey हर किसी का कैसा गया है. So I'm very excited to be here. Thank you so much. ओके, तो सृष्टि, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आईआईटी बॉम्बे प्लस आईआईएम बैंगलोर, this is a combination that everyone just dreams about and not a lot of people can make it to that place. So आपने वो किया and after that एक अच्छी जॉब छोड़ के एक योगा इंस्ट्रक्टर बन गई। मतलब हमने ये तो सुना है कि आईआईटी प्लस आईआईएम के बाद में हमने चेतन भगत जैसे लोगों को देखा है कि वो राइटर बन गए, बट दिस योगा इंस्ट्रक्टर थिंग इज वेरी न्यू। सो ये कैसे हुआ? Thanks, Satyam. This question always makes me smile क्योंकि आजकल हर कोई यही पूछता है मुझसे। तो coming to it, हाँ, तो ये initial plan में नहीं था। I never thought कि योगा मैं ऐसे career के दौरे लूंगी कभी। It was always there, but इतना seriously नहीं लिया इसको। So I know that all of us face different challenges and targets at different points in life. जैसे जब स्कूल में हो तो ये होता है कि अच्छा इस particular कॉलेज में जाना है या फिर ऐसे टाइप का काम करना है लेटर। So I was on the similar path. मैंने engineering किया, I went to do my MBA. I worked for 2 years with Budweiser and the experience was great. Financially, इतना stability, the role was good. It was a global company. तो मजा आया बहुत. But then again I asked myself कि अच्छा, like this is it, कि बचपन से जितना तुम पढ़ते हो, competition, rat race, everything, and this is the ultimate life. That इसके बाद 30-40 years you're going to live like this. फिर उस सवाल से I started seeing people around me and I felt like, यार, what are we doing? Like on the weekdays, 5 days, we just slog, we work so hard, सुबह से शाम. फिर weekends, you just sleep it off, you party or you just forget life. So it just made me feel like, अच्छा ये कितना non-sustainable है. अभी तो चल रहा है क्योंकि our bodies are young, but फिर after you cross 30-40 years, तब क्या होगा? Then I realized that there are so many other issues like stress, obesity, skin issues जो बाकी बाद में आएंगे when all of these habits turn into a reality. That was very scary to me. So that was the point जब मैंने I started researching more about physical and mental health and mental well-being, and I felt like ये पूरा fast-paced life is really affecting our relationship with family, friends, and our health. और डांस और योगा लाइफ में बहुत पहले से था. Like I used to train for Bharatanatyam and dance like in every college event and everything, which gave me a lot of energy and satisfaction. तो when इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा था, फिर मेरे को लगा कि ठीक है, to balance myself, I'll join a dance course. तो ये सुबह 6 to 9 was my dance course. 6 to 9 a.m. I would do my classes and फिर काम पे जाती थी. So that sort of gave me a start to this whole journey. Right. तो आपने बोला 6 to 9 in the morning, right? तो आपके ऑफिस आवर्स क्या थे? 9 के बाद ऑफिस आवर्स like 9:30 10 से लेके घर जाओ, freshen up and then सुबह. कभी-कभी 7 तक चलता है, 8 तक चलता है. वो थोड़ा flexible था, but it used to go on the rest of the day. राइट. तो और मतलब आप आए हैं बैंगलोर के पास आउट है, तो ऑफ कोर्स जॉब हेक्टिक ही होगा. ऐसा कोई इजी जॉब में बहुत ज्यादा पैसे मिलते नहीं है, राइट? और अगर आपका जॉब रात को 8 बजे 9 बजे 7 बजे खत्म हो रहा है, तो सारे सोशल कैचअप जो भी आप करते हैं दोस्तों के साथ में या ऑफिस पार्टीज, वो सब रात को हो रही है. आप सुबह 6 से 9 क्लासेस कर रहे हो, 5 बजे उठते होगे, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लेट नाइट पार्टीज एंड एवरीथिंग. सो हाउ डिड यू मैनेज सोशल सर्कल प्लस your classes, work, everything? So when I decided to go for it, it was because I strongly felt about dance and it affected my life and my body. एक और चीज ये है कि हम बाहर की चीजें क्यों देख रहे हैं? Like why do we want to go and chill out after work या फिर spend more time with friends or family? Is to relax, is to get away from that stress of work.
तो ये जो 6 to 9 वाला टाइम था वो मेरे लिए ऑलरेडी यही काम कर रहा था. आई वाज फीलिंग वेरी मच हैप्पी विद माई सेल्फ एंड रिलैक्स विद दैट टाइम. तो ठीक है, लाइक थोड़ा बहुत मिस किया बट आई नेवर फेल्ट बैड फॉर इट, क्योंकि जब भी मिलना था मे बी वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम निकाल लिया, अकॉर्डिंगली स्केड्यूल एडजस्ट कर लिया. बट दिस वाज इम्पोर्टेंट, तो ये टाइम देना था मुझे. या सो मतलब आपका जॉब के साथ में आपका जो बेसिकली हॉबी बोलूं या पैशन बोलूं वो अच्छे से मैनेज हो रहा था पूरा. देन फिर आपने जॉब छोड़ा एंड उसके बाद आप इस वक्त योगा के फील्ड में हैं. सो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ एंड मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? So I was satisfied with my job, but वो fulfillment नहीं लगा था. I felt like ठीक है, काम कर रही हूँ, पैसे आ रहे हैं, but it was not the ultimate happiness that I was looking for. और in general, because ये सब thoughts चल रहे थे कि how do I increase awareness about physical mental health. So it took me like 5 months. ऐसा नहीं था कि overnight I went, I quit my job और खत्म हो गया, एकदम से change हो गया life. It took me 5 months. हर रोज मैं जाती हूँ. I think I'm going to talk to my boss today, manager today, but नहीं हो पाता था. I was scared कि यार job चली गई तो how will I explain myself, family and everything. तो फिर after that day, that particular day जब चला कि ठीक है आज तो करना ही है, I have to do this right now, वरना बहुत late हो जाएगा for me to give this a chance. That day it's a very funny story, but I wrote like a big no on my hand saying जो भी बोलेंगे आज तो quit करना ही है. Like I need this break for myself and I have to do this. So that's how it started. उसके बाद I planned it sort of well. I did my yoga course for 3-4 months. वो खत्म किया. I started working with Cult. That went on for 9-10 months. And then I went into becoming a freelancer and working for myself. So the transition has been best. Right. So आपने जब ये break लिया था तो you did not have any intention of becoming a yoga instructor, right? तो CV पर break कॉर्पोरेट में जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? अनलेस एंड अनटिल इट्स फॉर सम एग्जाम प्रिपरेशन या कोई स्टार्टअप के लिए आपने ब्रेक लिया हो. तो जब आप ये ब्रेक ले रहे थे सो आपके दिमाग में कुछ अनसर्टेनिटीज थी कि वापस मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूंगी, हाउ डू आई गेट बैक इन केस रिक्वायर्ड या इस टाइप से? Of course, I was very scared. बहुत डर था, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा टू रीवैल्यूएट, हर दिन पूछ के क्वेश्चन, रिसर्च करके फिर डिसीजन लेना पड़ा. बट एक वन थिंग जो मैंने अभी तक लाइफ में सीखा है इज दैट यू हैव टू ऑप्शंस एंड चॉइसेस ऑल द टाइम. वो तुम्हें यू हैव टू मेक दैट चॉइस एंड योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट चॉइस फॉर द रेस्ट ऑफ इट. तो फिर मेरे पास भी 2 चॉइसेस थे. अगर इफ आई डोंट चूज दिस राइट नाउ तो फिर मे बी थोड़े महीनों के बाद या फिर आफ्टर सम इयर्स वो वापस आता. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस आई शेयर इज दैट मैं बचपन से डांस करती थी. आई वाज लर्निंग भरतनाट्यम, बट वो फुली उसमें गई नहीं. तो देयर वाज अ डे जब अ गर्ल ऑफ माय एज वाज परफॉर्मिंग, एक परफॉर्मेंस देखने गई थी मैं, एंड शी वाज सो ब्यूटीफुली डूइंग इट, हर एक्सप्रेशंस, हर बॉडी, एंड देयर वर लाइक 5,000 people watching her dance just for like an hour. And that really hit me hard. कि यार अगर ये मैं पहले करती तो I would have been there. Just because I didn't choose that तभी तो ये नहीं हो पाया. And I didn't want to come back to this point later in life कि be regretted या feel bad. So that choice had to be made and I could choose this at that point. एक और चीज ये भी है कि I think I built a strong base for myself कि education complete किया, काम भी किया. So I had some confidence कि यार अगर ये नहीं चला तो I can come back, but I can't live with that regret of not giving a chance. So that feeling was very strong. इसीलिए I took that step ahead. Exactly. मतलब आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से आफ्टर दिस ब्रेक आपको कल्ट में आपको जॉब करने का मौका मिला था एंड आपको ऑपरेशनल रोल के लिए मतलब बेसिकली ऑफर आया था कंसिडरिंग योर डिग्रीज एंड एजुकेशन. सो बट उसके बावजूद आपने वहां पे भी योगा टीचर का रोल आपने चुना एंड दैट वाज आल्सो विद अ वेरी लेसर पे कंपेयर्ड टू योर प्रीवियस सैलरी. सो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ये भी थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ऐसा लगा था कि अच्छा ठीक है, जॉब क्विट किया, एक और जॉब मिल गया, मे बी आई शुड जस्ट जंप इनटू इट, सेफ भी होगा एंड एवरीथिंग. बट फिर यार जब चॉइस बना लिया है सो व्हाई लूज मोटिवेशन इनिशियली. और वो इनिशियल पुश बहुत होता है, तभी इतना सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है, सब लोग आके सजेस्ट करते हैं कि यार ये क्यों कर रही है, आर यू सेफ, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. और उस टाइम पे कॉन्फिडेंट होना तो मुश्किल ही है, वो तो अभी स्टार्ट हुआ है. बट फिर तभी ये थोड़ा पुश लगा कि यार अभी 100% देते हैं, लेट्स सी एंड ट्राई.
तो वो ऑपरेशंस वाला थोड़ा होल्ड पे रखा था to just try and see how will I perform as a teacher. और funnily, I won't even exaggerate this, is that I took around 1000 classes कल्ट में. यार एक दिन नहीं था when I felt bored of the class. So that was a strong motivation to myself. And हर दिन पे maybe I would meet 20 students. So 200 students. Every day interaction of 200 students and 1000 classes, and not being bored of it, just like gave me a lot of motivation. Yeah, nahi, like chal raha hai, I feel energetic after the class. I would forget to eat sometimes, but फिर भी I would give my 100%. So I felt that it was working. उसके बाद taking that plunge was necessary. So, that's why. So, पिछले 6 महीने से आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि हमें हमारी रिसर्च में पता चला है. तो इसके क्या प्रोज और कॉन्स आपको लगता है वर्सेस वर्किंग विद मे बी बडवाइजर, कल्ट या वैसा? तो एक चीज तो ये है that बचपन से ऑलमोस्ट सिंस वी बॉर्न वी आर ऑलवेज इन अ सिस्टम. कुछ ना कुछ चलता रहता है जो बाकी के लोग विल डिफाइन फॉर यू. लाइक स्कूल में भी हो तो फिर एक सिस्टम है, कॉलेज में हो एक सिस्टम है, कंपनी में काम कर रहे हो. तो द मोटिवेशन इज ऑलवेज ड्रिवन फ्रॉम आउटसाइड कि कोई तुम्हें काम दे रहा है एंड यू आर डूइंग द वर्क फॉर देम एज एन एंटिटी. तो ये एकदम से शिफ्ट वाज वेरी डिफिकल्ट. लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेंट ऑन क्योंकि यहाँ पे कोई चेक कर ही नहीं रहा है. मैं आज काम नहीं करूंगी फिर भी चलेगा. तो फिर वो कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन फिर मजा आ रहा था क्योंकि द प्रोस ऑफ दिस इज अनलिमिटेड. कोई डेफिनेशन कोई कुछ है ही नहीं. लाइक आई कुड ड्रीम एनीथिंग, आई कुड जस्ट गो फॉर एनीथिंग बाय माई सेल्फ. तो एक एग्जाम्पल इसका ये है कि आई वॉन्टेड टू टीच अब्रॉड. कि इंडिया में 9-10 मंथ्स कर लिया था एक्सपेरिमेंट. आई वॉन्टेड टू सी कि बाहर के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर योगा बिजनेस बाहर कैसा है. And I could do it. I went to the US. I taught in San Diego, Miami, and New York. So that was just a boosting thing to me कि यार it's okay to dream. And एक बार when you're not working for somebody else, you're working on yourself, and that is a great satisfaction. So the last 6 months have been amazing like that. Very scary क्योंकि few months तो कुछ होता नहीं है. फिर तुम्हें you have to pull yourself back there and do it. It's good to have a strong supporting system. My family supports me a lot. It's वैसा अच्छा है. But otherwise it's a constant drill towards. Yeah. Okay, so सृष्टि इसके आगे क्या? मतलब what is your future vision? मतलब जैसे अभी आपने 6 महीने खुद के लिए काम करके भी देख लिया है, काफी कुछ एक्सप्लोर भी कर लिया है. So कुछ आपके माइंड में होंगे फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? So क्या उसके बारे में आप बता पाएंगे? हाँ जी. तो एक तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा ही that I'm fully dedicated towards improving awareness of physical and mental health. क्योंकि यार हम लोग नहीं कर रहे हैं enough. We are not eating properly. We are not sleeping, not taking care. तो वो चलता रहेगा. अभी 2-3 महीने से क्या चल रहा है? I'm doing online sessions, webinars and online classes. I have launched a website recently. It's called yogawithsrishti.com. तो फिर वहाँ पे right now I have students from US, Australia, Japan and Europe. तो वो बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि now there is no restriction on geography. कहीं से भी लोग they can interact, they can ask questions, develop more knowledge. तो वो तो चलेगा ही to teach and to increase awareness. 2 और plans हैं. एक और retreats, नेचर योगा रिट्रीट, जहाँ पे वी टेक कॉर्पोरेट या फिर अ बंच ऑफ फैमिली फ्रेंड्स अवे फ्रॉम द सिटी. कि कहीं रिसोर्ट में चले या फिर आउटसाइड द सिटी, स्पेंड 3-4 days, वर्क ऑन योगा, हेल्थ, अवेयरनेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, हाउ टू लिव होलिस्टिकली, ये सब. तो ये सब सेकंड प्लान इज टू इम्प्रूव ऑन दैट रिट्रीट फ्रंट. एंड तीसरा प्लान जो मेरा सबसे क्लोज हुए हार्ट प्लान है, that is pre and postnatal yoga. So which is yoga for pregnant women before pregnancy, during and after. इसका motivation ये भी है because my mother is a gynecologist. तो समझता है कि nowadays this time pregnancy and childbirth is a very crucial thing. क्योंकि पहले क्या होता था, we were used to doing घर का काम, squatting down, doing things, so childbirth was natural. अभी उसका बहुत issues है, the number of steroids the woman goes through. That's where I want to work. चल रहे हैं classes already, but I want to build a strong place and a base for prenatal yoga. So अभी के लिए तो ये है online plate. Yeah. That is an amazing vision, right? We wish you all the best for your future endeavors, and we hope
कि आप इस टॉक के बाद एटलीस्ट लोग थोड़ा अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने लगे. मैं डेफिनेटली दूंगा. I'll start monitoring my mental and physical well-being. Thank you so much, Shrishti. This was amazing. आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी बहुत सारी of course learnings रही होगी. उस बेसिस पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? हाँ जी, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट अभी इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे करियर चॉइसेस है बाहर, बहुत इंफॉर्मेशन है, बट फिर हाउ डू यू चूज इट? ऐसा नहीं है कि यू वांट टू बी कूल और यू वांट टू बी फेमस तो फिर कुछ पिक कर लिया और वो हो गया या नहीं हुआ. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. तो बिल्ड योर बेस, improve your knowledge, research करो. If you want something, sit for months, just work on questioning and researching, and then safety net build करो अपने लिए. Have some savings. When I quit my job, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही I took the plunge. I saved salary for around 1.5 years ताकि that could support me later. But एक और चीज ये भी है that take that risk sometimes. Don't be always scared of things. One thing जो मेरे life में useful रहा है is that this quotation where I read somewhere which says action makes fear look small. So fear is always there. अगर मुझे कुछ करना है, for example I want to become a musician, मैं ऐसे ही बैठ के I'm thinking कि यार नहीं होगा, it's so risky, I can't take that step, तो वो कभी नहीं होगा. But make a small action towards it. Join a class. You're already progressing. So action makes fear look small. So take that action and take that risk. But smartly prepare yourself. Thank you, Srishti. That was very much enlightening. मतलब this was actually the intention behind our channel, कि लोगों को इन्फॉर्म करें कि मतलब आप कुछ करना चाहते हो तो करो, बट उसके पीछे के आप सारे पहले रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट करो, खुद को प्रिपेयर करो पहले उस चीज को एक्सप्लोर करने से पहले. एंड जो भी है, मतलब जैसे आपके भी केस में मंथ्स ऑफ रिसर्च वाज इन्वॉल्व्ड, तो जो कुछ भी आपने किया, रिस्क भी ली तो वो कैलकुलेटेड रिस्क ली थी जो भी ली थी. सो वही हमारा इंटेंशन है. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आज का. सो व्यूअर्स, इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए प्लीज like and share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching. Thank you. Thank you.